Today we are studying class 10th chapter 4. Name of the chapter is quadratic equation. आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 को एक कंप्लीट ओवरव्यू के थ्रू, मींस एक एग्जांपल के थ्रू we will cover all the concepts under one single example. So we will discuss all the concepts, all the points under this example. So focus on the board. Our example is what? The sum of the Rahman age means रहमान की एज का सम. एज कब हमें गिवन है? 3 years ago, 3 साल पहले, एंड 5 years from now, आज से 5 साल के बाद. मीन्स हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं, लेट रहमान एज टुडे मीन्स यू कैन से प्रेजेंट, दैट इज व्हाट x years. हमने मान लिया रहमान की एज आज कितनी है x, तो रहमान की एज 3 years ago वो क्या हो जाएगी हमारी, दैट विल बी x minus 3 years एंड 5 years from now, 5 साल के बाद क्या हो जाएगी x plus 5 years. हमें क्या गिवन है, इन दोनों एज के रेसिप्रोकल का सम. यू कैन सी the sum of the reciprocal, there is a word missing, the sum of the reciprocal of Rahman age 3 years ago and 5 years after. So you can make the equation 1 by x minus 3 plus 1 by x plus 5 equals to 1 by 3. Clear है? Our first point is what? Formulation of the quadratic equation means quadratic equation को बनाना हमारा वो फर्स्ट पॉइंट है. So we are going to discuss that point. Focus on the board. Then we will take what? We will take LCM. X minus 3 x plus 5 equals to 1 by 3. Now focus. कंपेयर करेंगे x minus 3 x minus 3 x plus 5 किसकी कमी है, प्लस 5. इट मीन्स x plus 5 1 जा x plus 5. इन द सेम वे x plus 5 किसकी कमी है, x minus 3 1 जा x minus 3. नेक्स्ट स्टेप x plus x 2x, 5 में से 3 गया 2, बड़ा कौन है प्लस का, डिवाइडेड बाय x into x स्क्वायर प्लस इंटू प्लस 5 into x 5x माइनस इंटू प्लस माइनस 3 into x 3x प्लस इंटू माइनस 5 3 जा 15 इक्वल्स टू 1 by 3. क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप 2x plus 2 as it is, नीचे x स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया 2x माइनस 15 इक्वल्स टू 1 by 3. नेक्स्ट स्टेप we will do what? Cross multiply. Focus. क्या करेंगे, just wait. What we will do, cross multiply. We get what? X square plus 2x minus 15 equals to 3 2 जा 6x, 3 2 जा 6. At last x square plus 2x minus 15 plus will become minus, plus will become minus equals to 0. Next step x square 6 में से 2 गया 4x, बड़ा कौन है माइनस का 15 माइनस का 6, I get माइनस का 21 equals to 0. So this is the required quadratic equation. Focus. हमारा पहला पॉइंट था quadratic equation को फॉर्मुलेट करना. मींस हमको भी कंडीशन दी रहेगी, उस कंडीशन को यूज करके हमें क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यू कैन सी द डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 2, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मींस हमारा जो नेक्स्ट कांसेप्ट है बेटा वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मतलब उसके रूट्स निकालना. I hope you know very well. रूट्स निकालने के we are having 3 methods. First one factorization,
second one completing the square, third one quadratic formula. So we will discuss all the 3 points. Focus on the board. हमारी जो इक्वेशन थी एट लास्ट एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0. We are going to find the roots of this equation by 3 methods. First one, that is what? Factorization. Second one, that is completing the square. जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको फिर भी आना चाहिए, ये हायर क्लासेस में काम आएगा. थर्ड वन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. So just focus on the board. We are going to discuss now. Students, now focus. Our first point is what? Factorization. You know very well in factorization what we do. हम क्या करते हैं? हम बीच वाली टर्म को तोड़ते हैं in two terms. Focus. अगर मैं मेरी इक्वेशन को कंपेयर करूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से, I get ax square plus bx plus c equals to 0. If I compare, I get the value of a as 1, I get the value of b as minus 4, I get the value of c as minus 21. From there, first we find a most important point, that is second point, that is nature of roots. मतलब हमारे रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं. नेचर ऑफ रूट्स इज डिटरमाइंड बाय अ पॉइंट दैट इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट. देयर इज अ वर्ड डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी. वैल्यू इज व्हाट? b स्क्वायर माइनस 4ac. सो फर्स्ट वी फाइंड d. d क्या होता है हमारा? b स्क्वायर माइनस 4ac. b की वैल्यू I get minus 4. Minus 4 into a की वैल्यू I get 1. c की वैल्यू I get minus का 21. From here I get 16 plus 84. I get 100. Always remember, अगर d की वैल्यू क्या आ जाए? 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी, then we will say the roots are real. We can find them. अगर d क्या आ जाए? 0 से छोटा, it means roots are unreal. We can't find them. Is it clear? So you can see हमारे d क्या है? 0 से बड़ा. It means we can find the roots. Clear? Now proceeding to the topic factorization. Factorization में हम क्या करेंगे? फोकस. हमें कंसेप्ट कहता है मल्टीप्लाई a and c. 1 के मल्टीप्लाई माइनस के 21 से I get माइनस का 21. अब हमें क्या करना है? माइनस के 21 को दो नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए? माइनस का 21 और प्लस करने में क्या आना चाहिए? माइनस का 4. यू कैन सी देयर आर टू नंबर्स 7 and 3. 7 3 is 21. 7 and 3 can give us 4. क्लियर है? 4 किसका है? माइनस. इट मींस बड़े वाला माइनस, छोटे वाला प्लस. क्लियर है? नाउ क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर हम क्या करेंगे? माइनस के 4 को ब्रेक कर देंगे माइनस के 7 and 3. आई गेट माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0. नाउ इन दो का एक पेयर और इन दो का एक पेयर. फोकस. कॉमन क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर और एक्स कॉमन आया x, क्या बचेगा? x माइनस 7. कॉमन आया 3, क्या बचेगा? x माइनस 7 इक्वल्स टू 0. नाउ द कॉमन इज व्हाट? x माइनस 7, क्या बचेगा? x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. नाउ वी आर हैविंग टू वेज. x माइनस 7 either 0, x plus 3 either 0. From here I get x की वैल्यू minus 3. From here I get x की वैल्यू 7. So these are the two possible solution of the given quadratic equation. Clear है? This is our first method. That is what? Factorization. Focus.
Now we are going to discuss our second part, that is completing the square. Completing the square हमारे सिलेबस में नहीं है, yet आपको आना चाहिए. So we will discuss it with the same example. Focus. Third one is what? Solution of the equation. Clear है? First point we have discussed factorization. वो डिस्कस कर लिया है. Now second point we are going to discuss completing the square. And at last we will discuss our last point, that is quadratic formula. Focus the second point. Second point is what? Completing the square. हमारे नाम के अंदर क्या है? स्क्वायर को कंप्लीट करना. We will complete either a plus b का होल स्क्वायर और either we will complete a minus b का होल स्क्वायर. I hope you know very well what is a plus b का होल स्क्वायर. Yes, yes, you are right. That is what? A square plus b square plus 2ab. If I talk about minus, then you can say a square plus b square minus 2ab. Clear है? Focus. कैसे करेंगे? x square minus 4x minus 21 equals to 0. ये हमारी इक्वेशन है. सबसे पहला पॉइंट होता है x square का कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल्स टू 1. वो तो पहले से ही है. गुड. नाउ सेकंड पॉइंट क्या होता है? x के कोएफिशिएंट को पकड़ लो. हमारा कोएफिशिएंट कितना है? 4. उसको मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से. आई गेट 2. हमें क्या करना है? 1/2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आया उसका स्क्वायर पहले क्या करना है? प्लस और फिर क्या करना है? माइनस. कैसे करेंगे? फोकस. x स्क्वायर एज इट इज माइनस 4x एज इट इज. अब क्या करेंगे? 2 के स्क्वायर को प्लस करेंगे और उसको माइनस करेंगे. माइनस का 21 एज इट इज इक्वल्स टू 0. इससे क्या हुआ? ध्यान दो, हमारा स्क्वायर क्या हो गया? कंप्लीट. कैसे? दिस इज व्हाट? a स्क्वायर, दिस इज व्हाट? b स्क्वायर एंड दिस इज व्हाट? माइनस का 2ab. यू कैन चेक. 2 2 जा 4, साथ में x. क्लियर है? तो मैं तीनों को कंबाइन करके लिख सकता हूं x माइनस 2 का स्क्वायर. क्लियर है? दिस इज व्हाट? a माइनस b का स्क्वायर. एट लास्ट माइनस 4 माइनस 21 इक्वल्स टू 0. x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 25 इक्वल्स टू 0. क्लियर है? फ्रॉम हियर यू कैन सी व्हाट? दिस इज व्हाट? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. यू कैन सॉल्व. इसको हम ले सकते हैं 5 का स्क्वायर. यू गेट व्हाट? a माइनस b. यू गेट व्हाट? a प्लस b equals to 0. At last x 5 minus 2 what? X minus 7. This is what? X plus 3 equals to 0. From here there are two ways. Either this can be 0 or this can be 0. You get x minus 7 equals to 0. X की वैल्यू 7 और x plus 3 equals to 0. You get x की वैल्यू minus 3. क्लियर है? So these are the two possible answers by the method what? Completing the square. Clear है? Got it? Now focus. We are going to discuss our third method, that is completing the square. ये मेथड जो हमने अभी पढ़ा, completing the square, सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, because this will come in class 11th and 12th at many concepts. In many concepts. So you must know this completing the square. Now focus. Our third one is what? Quadratic formula. As the name indicate, there must be a formula, and yes, it is a formula. Minus b plus minus under root d by 2a. By applying this formula, you can find the two
possible roots if they are possible. Focus. क्वेश्चन में क्या आ रहा है, फॉर्मूला में क्या आ रहा है, D. You know very well. D is what? Discriminant. I told you this is what? B square minus 4AC. हमने निकाला था, कितना आया था, 100. अब D क्या है, 0 से बड़ा. It means roots are real and we can find them. क्लियर है? कैसे करेंगे, वेरी इजी. A की वैल्यू 1, B की वैल्यू माइनस का 4, C की वैल्यू माइनस का 21. We will put all these values in the formula and we will get our final answer. कैसे करेंगे, B की वैल्यू माइनस 4, D की वैल्यू 100 and A की वैल्यू 1. From here I get प्लस माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 4, प्लस माइनस कितना आएगा 10 upon 2. From here we are having two ways. First one will go with plus and the second one will go with minus. I get 14 by 2. I get 7. From here I get minus 6 by 2. I get minus 3. So these are the two possible answers. Clear? तो अगर हम हमारे पूरी वीडियो को एक समरी में कन्वर्ट करें तो हमारा सबसे पहला पॉइंट होता है कि कोई भी अगर हमको इक्वेशन दे दी जाए, उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक कैसे करते हैं. अगर उस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है. सेकंड पॉइंट, किसी भी कंडीशन को हमें क्या करना हो, फॉर्मुलेट करना हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हमें क्या करना है, उस कंडीशन को समझना है और क्या बनानी है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्लियर है? थर्ड पॉइंट, किसी भी इक्वेशन के रूट्स को निकालने से पहले यू शुड चेक द नेचर कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे. अगर करते हैं तो वी कैन फाइंड देम, अगर नहीं करते हैं वी कैन राइट नॉट पॉसिबल टू फाइंड, मींस उनको फाइंड करना पॉसिबल नहीं है. क्लियर है? थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ पॉइंट, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने के वी आर हैविंग 3 मेथड्स. यू कैन अप्लाई एनी वन विच यू वांट टू यूज, बट फोकस सिलेबस में कप्लिंगर स्क्वायर नहीं है. क्लियर है? So in this way we have discussed all the concepts under one single example. So I hope you understand all the concepts very well. In the next video we will start our NCERT exercise number 4.2 question number 1. Got it? So till then take care, bye.